بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن نبی داؤد کا سبق نمبر 42 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب فی تحریم الخمر، یعنی کہ شراب کی حرمت کا بیان۔ تو دیکھیے، ہم چونکہ کتاب الاشربہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کتاب الاشربہ ہی کا پہلا باب ہے، تو کل ہم نے اس کا تعارف پڑھا تھا اور ایک حدیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اگلی احادیث کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه قال حدثنا عباد بن موسى الفتليش قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أمر وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت آية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير الآية قال فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت آية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حرمت شراب کی نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی اور کافی بیان نازل فرما دیجیے۔ اس لیے پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ بقرہ میں ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یعنی کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی اور کافی بیان فرما دیجئے۔ پھر سورۃ نساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ آیت نازل ہوئی۔ تو چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو پکارتے تھے کہ خبردار، نشے کی حالت والے نماز کے قریب مت آئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور انہیں یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے فرمایا اے اللہ، شراب کے بارے میں ہمیں واضح بیان عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ پھر سورۃ مائدہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، آخر آیت تک۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور پانسا وغیرہ یہ شیطانی کام ہے، بس ان سے اجتناب کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دے، شراب اور جوئے کے بارے میں تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، بس کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انتہینا، ہم باز آئے۔ اب دیکھیے، اس کو سمجھیے، شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آخری آیت تک۔ تو یعنی کہ اے نبی، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دونوں میں بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اگرچہ لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی اس میں نفع بھی ہے، لیکن اس کا گناہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کا گناہ نفع سے بہت بڑھ کر ہے۔
تو देखिए यहाँ पर इशारा देकर बतला दिया कि इसका जो गुनाह है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर बहुत से सहाबा ने इस आयत पर शराब नोशी को तर्क कर दिया, क्योंकि अब उनको मालूम हो गया था कि अब हवा का रुख क्या है, कहाँ जा रही है हवा। फिर आगे सूरत निसा में दूसरा हुक्म आया, ला तकरबुस सलाता व अंतुम सुकारा, कि ना तुम करीब जाओ नमाज के इस हालत में कि तुम नशे की हालत में हो। क्या मालूम तुम अगर नशे की हालत में नमाज के करीब जाओगे तो क्या कहना शुरू कर दो, वहाँ जाके कोई गालिब की इश्किया गजल पढ़ना शुरू कर दो या खड़े होकर कुछ का कुछ कहना शुरू कर दो। तो एक और पॉइंट यहाँ पर मिल गया। देखिए, नमाज जैसी चीज से रोकने वाली शय, क्योंकि नमाज तो इमादुद्दीन है, दीन का सुतून है, इसको रोकने वाली चीज को बहुत बुरी चीज होनी चाहिए। तो इस तरह बहुत से लोगों ने इस आयत के बाद शराब नोशी छोड़ दी। फिर आखिरी आयत आई सूरत माइदा की, उसमें बताया कि ये शैतानी अमाल है, गंदगी के अमाल है, फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफलिहून, तुम इनसे बचो ताकि तुम फलाह पाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता, यकीनन शैतान ये चाहता है कि इन चीजों के जरिए तुम्हारे अंदर दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे। अब ये बहुत ही अहम बात है कि शराब के नशे में चूंकि इंसान अपना होश खो बैठता है, तो अब उसे कुछ मालूम नहीं कि उसने क्या बकवास की है, क्या कर रहा है, उससे बहुत से झगड़े और फसाद शुरू हो जाते हैं। आपको मालूम है कि बहुत बड़े बड़े राज इस जमाने में बड़ी बड़ी हुकूमतों के, सुपर पावर के, वो शराब के नशे में चुरा लिए जाते हैं, वो राज निकल जाते हैं। तो अल्लाह ताला ये इन चीजों से तुम्हें बचाना चाहता है, और शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ पैदा करे। और इसी तरीके से जुए में भी चूंकि आदमी देख रहा है कि वो हार रहा है और बार बार हार रहा है, तो फिर एक वक्त आता है कि वो गुस्से से बस्ट हो जाता है, वो आग बगोला हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसे नजर आ रहा है कि जो मुझसे जीत रहा है वो मेहनत की वजह से नहीं जीत रहा। अगर तो कोई मेहनत कोशिश हो या किसी ने कमाया हो तो जाहिर सी बात है उससे इंसान गरज नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई होती है। और यहाँ पर चूंकि मेहनत की कमाई नहीं होती, इसलिए एक वक्त आता है कि जुआरी वो आपे से बाहर हो जाता है। यानी शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो तो चाहता है कि तुम्हारे अंदर जुए और शराब के जरिए दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा कर दे, और फिर उससे भी आगे वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाति, और ये कि तुम्हें रोके रखे अल्लाह की याद से और नमाज से। अब ये मामला तो शराब का था बिल्कुल वाज़े, लेकिन ये जुए में भी होता है, क्योंकि इंसान जब एक दफा इसमें लग जाए तो फिर ये होता है कि वहां से इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि ताश वगैरह का मामला है या शतरंज का मामला है, तो इन चीजों में लगकर इंसान अल्लाह की याद से, नमाज से गाफिल हो जाता है। देखिए फिर आगे फरमाया फहल अंतुम मुंतहून, तो यहाँ पर सख्त अंदाज अपनाया गया कि बाज आते हो कि नहीं आते। ये बड़ा धमकी वाला अंदाज है। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि यहाँ हराम का लफ्ज तो नहीं आया, तो देखिए फहल अंतुम मुंतहून, बाज आते हो कि नहीं आते, इससे ज्यादा रोकने का कोई अंदाज, कोई मामला हो सकता है भला? फिर हदीस में उसूल भी बता दिया गया, मा अस्करा कसीरुहु व कलीलुहु हरामुन, यानी कि जो चीज अगर ज्यादा मिकदार में हो और वो नशा ले आए, उसकी छोटी मिकदार यानी थोड़ी मिकदार भी हराम है। तो शराब का एक कतरा भी हराम है, लेकिन आजकल के बेअकल लोग कह रहे हैं कि शराब तो हराम नहीं है, ताकि मगरिब ये मान ले कि हाँ ये तो बड़े मॉडरेट लोग हैं, बड़े लिबरल लोग हैं, रोशन ख्याल हैं, ये कोई दकियानूसी लोग नहीं हैं, ये फंडामेंटलिस्ट नहीं है। शराब पीकर नशे में धुत हो जाना, मदहोश हो जाना, ये हराम है। अब यहाँ पर दलील ये है कि कुरान में शराब के लिए हराम का लफ्ज कहीं आया है, बताओ। तो अब आप बताइए कि डिटाई का क्या इलाज? कुरान शराब को रिजसुम मिन अमल शैतान करार दे रहा है, शैतानी अमल, नापाक अमल, नापाक चीज कह रहा है। फिर आगे हुक्म है फजतनिबूहु, यानी कि इज्तिनाब करो, बचो इससे। फहल अंतुम मुंतहून की धमकी देके
बाज आते हो कि नहीं आते? और बेअकल लोग कह रहे हैं कि शराब तो हराम नहीं है, मुतलकन तो कोई हुक्म नहीं है। अब यहाँ पर क्या मामला है? तो अहकामे हुर्मत शराब के तदरीजन आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान में वो आयत भी है कि इसमें कुछ नफे का पहलू भी है, लेकिन इसका नुकसान यानी गुनाह का जो पहलू है वो ज्यादा है। सूरत बकरा में ये बात फरमाई गई, फिर छोड़ दी गई बात। फिर आगे फरमाया कि नमाज के करीब ना जाना जब शराब नोशी यानी नशे की हालत में। उसके बाद फिर आखिरी हुक्म आ गया सूरत मायदा के अंदर, यानी अब हतमी फैसला हो गया कि अब शराब के करीब बिल्कुल भी नहीं जाना। फिर अगर हम इसी पर क्यास कर लें कि मुतलकन हुक्म नहीं आया कुरान में शराब के हराम होने का, अगर इसी पर क्यास कर लिया जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि जिना भी हराम नहीं है, क्योंकि कुरान में कहाँ कहा गया है हुर्रिमा अलैकुमुज़ ज़िना, कहीं कहा गया है, और ये भी नहीं कहा गया इन्नमा हर्रमल्लाहु ज़िना। कुरान में ऐसे कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि कुरान में तो ये है वला तक़रबु ज़िना। इसका मफहूम तो ये है कि जहाँ जिना हो रहा हो उस मुकाम के करीब मत जाओ। मुतलकन हराम का लफ्ज तो नहीं आया। इसी तरह एक बात और सुनी जा रही है कि सूद खाना हराम है, लेना तो हराम नहीं है। कहाँ कुरान में लिखा हुआ है कि लेना हराम है? अब इन सब चीजों के बारे में तो हमें सुन्नत बताती है, यानी इन चीजों के बारे में जो अहकाम है सुन्नत से हमें पता चला कि शराब हराम है। न सिर्फ शराब हराम है, कुल्लु मुस्करिन, जिसमें भी नशा हो जाए वो हराम है। अगली हदीस देखिए, वबी क़ाल हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया अन सुफियान क़ाल हद्दसना अता इब्न साइबी अन अबी अब्दुर्रहमान सुलमिशी अन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम अन्ना रजुलन मिन अंसारी दआहु व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फसक़ाहुमा क़ब्ल अन तुहर्रम अल-ख़म्रु फ़अम्महुम अलिशुन फ़िल मग़रिबि फ़क़रअ क़ुल या अय्युहल काफ़िरून फ़ख़लत फ़ीहा फ़नज़लत ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलूना। हजरत इब्न अबी तालिब से रिवायत है कि एक अंसारी शख्स ने इन्हें और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दावत पर बुलाया और इन दोनों को शराब पिलाई कि शराब की हुर्मत अभी नाजिल नहीं हुई थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी नमाज मगरिब में इमामत करवाई और कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ी और इसमें खल्त कर दिया, यानी कुछ गड़बड़ कर दी। चुनाचे ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, के नमाज के करीब मत जाओ कि जब तुम नशे की हालत में हो। हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।